Hello, my dear friends. Today I have decided to discuss plea bargaining. As you know that this topic has been mentioned in your unit 9, that is the other means of disposal of cases. But as you know that I had started to discuss the session trials, some warrant trials, summons trials, summary trials, and after that this chapter is that. That's why I decided to complete the plea bargaining. And later on I will complete other points, and be sure that I will complete all the points. And here is that plea bargaining. If you see the previous year question paper, you will always get the some important questions. And here is that in the previous year it was asked 20 marks. And plea bargaining is the newly added inserted chapter in the CRPC. That's why always some questions is asked from the plea bargaining. So that's why today I will discuss the topic, that is the plea bargaining. In this way, regarding the, I have made the summary. What is the summary? Summary is that the first of all I will discuss the introductions, and there are here three reports. 21st report of the Law Commission of India, which was submitted in 1991, and 154th report of Law Commission of India 1996, and third is that report of the Malimat Committee, which was submitted in the March 2003. It means if you see the all these three reports, 144th, 142nd report of Law Commission of India, 154th report of the Law Commission of India, and report of the Malimat Committee. In all these three reports, it was discussed about the plea bargaining, and finally, on the recommendation of these committees, on the recommendation of these reports, a new chapter, that is the chapter 21A, was inserted in this way. So here if you see the how it was inserted, in this chapter was inserted by the Criminal Law Amendment Act 2005. If you see the name of the act, the name of the act is the 2005. Why? Because it was introduced in 2005, but finally it was passed in 2006. If you see the number of this is the 2nd of 2006. इसका मतलब ये हुआ कि 2006 में जो भी कानून पास हुए थे उसमें नंबरिंग वाइज देखा जाए तो सेकेंड नंबर पे, मतलब इससे पहले 2006 में सिर्फ एक कानून पास हुए थे, दूसरे नंबर पे जो कानून पास हुआ था तो एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 ही पास हुआ था। तो ये और इसके प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, आप सेमेस्टर एग्जाम में जब भी ध्यान में रखें तो आपको तीन बात ध्यान में रखना होगा। 142nd रिपोर्ट, 154th रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ द मालिमत कमेटी। देखिए अगर इन तीनों रिपोर्ट में अगर हम बेसिक अंतर ये मानते हैं कि जब हम मालिमत कमेटी की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो मालिमत कमेटी में इतना ही कहा गया है कि भाई 142nd रिपोर्ट और 154th रिपोर्ट में इतना डिटेल में इसको डिस्कस कर दिया गया है कि अब इस टॉपिक पर कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मतलब मालिमत कमेटी ने 154th रिपोर्ट को और 142nd रिपोर्ट को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। अब बात रही है 142nd और 154th रिपोर्ट की, तो इन दोनों में प्ली बार्गेनिंग बहुत थरोली डिस्कस किया गया और हम इसको डिस्कस भी करेंगे थरोली। और 142nd रिपोर्ट में हम देखेंगे कि प्ली बार्गेनिंग का मतलब मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। 154th में भी देखने को मिलेगी थोड़ा बहुत। लेकिन 154th में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या किया गया था कि इसमें चैप्टर का नाम ही लिख दिया गया। इसमें कहा गया कि सीआरपीसी में जब भी ये चैप्टर ऐड किया जाए उस चैप्टर का क्या नाम होना चाहिए, चैप्टर का नाम 21A रखा जाना चाहिए। अब 21A रखने का क्या रीजन था, क्यों 21A के बाद ही इसको रखा गया, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। तो लॉजिक इसका ये रखा गया कि देखिए भाई समरी ट्रायल का पर्पज क्या है। समरी ट्रायल का पर्पज तो यही है ना कि जो पिट्टी नेचर के ऑफेंसेज हैं उनका स्पीडी मैनर में हम डिस्पोजल करें, केस को डिस्पोज करें। जब केस को डिस्पोज करेंगे तो कोर्ट के ऊपर से बर्डन भी खत्म होगा। तो मेन रीजन ये है कि समरी ट्रायल का भी पर्पज ये होता है कि टू सेव द टाइम एंड टू रिड्यूस द बर्डन ओवर द फ्रॉम द कोर्ट। तो इसका भी पर्पज अगर हम सर्च करेंगे प्ली बार्गेनिंग का तो इसको भी इंट्रोड्यूस करने का एक ही रीजन पाया गया था कि अगर इसको प्ली बार्गेनिंग को अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे सीआरपीसी के अंतर्गत तो इसके माध्यम से कई जो छोटे छोटे ऑफेंसेज हैं
उस ऑफेंसेस को हम प्ली बार्गेनिंग के थ्रू डिस्पोज कर लेंगे और पार्टी को भी फायदा होगा और साथ साथ स्टेट एक्सचेकर को भी फायदा होगा, स्टेट पर बर्डन कम पड़ेगा। तो दोनों के ऑब्जेक्ट, समरी ट्रायल के ऑब्जेक्ट और प्ली बार्गेनिंग के ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। प्ली बार्गेनिंग के समरी ट्रायल के जस्ट बाद ही प्ली बार्गेनिंग को इंसर्ट किया गया है। अब हम इसको एक प्रोविजन की जब बात आती है तो प्रोविजन के बाद में हम जैसे आते हैं तो अब सेकेंड टॉपिक पर जाते हैं कि चैप्टर 21A। तो अगर आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भाई प्ली बार्गेनिंग कहाँ मेंशन किया गया है, तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं आपके चैप्टर 21 में है कि 21A में है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समरी ट्रायल जब सीआरपीसी इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज इनेक्ट हुआ था, तभी से समरी ट्रायल का प्रावधान था। तो समरी ट्रायल का ऑलरेडी एक चैप्टर था ही 21, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब बाद में आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो नंबरिंग तो वहीं रहेगी, लेकिन नंबरिंग में आपको ABCD रखना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका नंबरिंग रखा गया है 21A। अब बात आती है कि इसके इन्फोर्समेंट का, इनेक्टमेंट का, तो हम आपको वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज जाता है। तो देखो दो आंसर आते हैं। अगर एक्ट का नाम पूछ दे कि किस एक्ट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो एक्ट का नाम तो होगा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 ही। लेकिन अगर इनेक्ट कब किया गया, किस साल पास किया गया, तो 2006 में पास किया गया था। और जब इसके डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की हम बात आती है तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में इसका लिख दिया है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। यहाँ देखो, इसको हमने डेट ऑफ इन्फोर्समेंट में लिखा है यहाँ पे कि इट केम ऑन द 5 जुलाई 2006। 5 जुलाई 2006 का इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने किस किस रिपोर्ट में अपना चर्चा किया था, 142nd रिपोर्ट में और 154th में। कब कब सबमिट हुआ था, 1991 में सबमिट हुआ था और एक हुआ था 1996 में सबमिट हुआ था। और साथ में मालिमत कमेटी की रिपोर्ट है। मालिमत कमेटी की रिपोर्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उन्हीं के कार्यकाल में मालिमत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दिया था। तो इन तीनों के बेसिस पे दो रिपोर्ट हो गई, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की और एक मालिमत कमेटी की रिपोर्ट हो गई। इन तीनों को बेस बना करके जब कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आई, यूपीए फर्स्ट जब आई, जब ऑनरेबल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया सीआरपीसी को और अमेंडमेंट लाया गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। तो लास्ट टाइम में लाया गया, तो पास करते करते डिबेट करते करते वो अगला साल पहुंच गया। तो जनवरी का जो सेशन आया उसमें आकर के इसको पास किया गया। तो जब पास किया गया, देखो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरा लिखने का पर्पज यही है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005 बट इनेक्ट कब हुआ, इनेक्ट इन 2006 हुआ। कैसे हुआ, इसका एक्ट का नाम है 2000 नंबर 2 ऑफ 2006। मैं अपने क्लासेस में कई बार बता चुका हूँ कि जो नंबरिंग होता है इसका मतलब ये होता है कि उस साल में इस पास होने वाला इसका नंबर कौन सा था। और एक कब इन्फोर्समेंट में आया, तो जुलाई 5 2006 में इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट में है। एंड बाय दिस अमेंडमेंट हुआ क्या, तो बाय दिस अमेंडमेंट से आपको चैप्टर 21A को इंसर्ट किया गया। इंसर्ट और करने का मतलब होता है पहली बार इसको सीआरपीसी में इसको लाया गया था। और इसके लाने से कौन कौन सेक्शन ऐड किए गए, तो 265A टू 265L तक का है। ए से लेकर के यल तक का प्रोविजन हमें याद करना होगा चैप्टर 21। अब देखो कैसे याद करना हो, इसको मैं एक बहुत ही सिंपल कहानी के रूप में इसको सुना दूंगा, एकदम मुझसे याद हो जाएगा। कोई इसका टेंशन लेने का नहीं है, हम एक एक सेक्शन आपको याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम में तुम लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि अगर लिखने को आ जाएगा तो तुम इसी तरह से एक पहले वो बना लेना, सेक्शन का नाम लिख देना ABCDEFGHIJKL। इसके बाद लिख करके जब सेक्शन वाइज एकदम एग्जैक्ट नाम लिख दोगे तो अंदर स्टूडेंट टीचर समझ लेगा कि जब तुम्हें सेक्शन याद है तो आपको तुम्हें मेन बॉडी भी याद है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अब इसका प्रोसीजर कैसे होता है। अब हम यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि प्ली बार्गेनिंग किस किस मामले में पॉसिबल है, किस किस मामले में पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अब तुम कहो कि रेप के मामले में प्ली बार्गेनिंग हो जाए, मर्डर के मामले में प्ली बार्गेनिंग हो जाए, तो एक्यूट क्या करेगा, एक्यूट क्राइम करेगा, धमकाएगा
और कहेगा कि तुम बार्गेन कर लो हमसे, अगर बार्गेन नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई को भी मारा था तुम्हें भी मार दूंगा। तो इसीलिए इसमें रखा गया है कि भाई प्ली बार्गेनिंग के मैटर में जो सीरियस ऑफेंसेज हैं, जो भी सीरियस नेचर के ऑफेंसेज हैं, उसमें प्ली बार्गेनिंग अप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे हमने समरी ट्रायल भी देख रहा था, तो पेटी केसेस में ही अप्लीकेबल है, छोटे छोटे मामले में ही अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर भी जो स्मॉल नेचर के ऑफेंसेज होते हैं उसी में अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर में दो पार्ट हम डिवाइड करेंगे। पहले तो ये बताएंगे कि प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर, प्ली बार्गेनिंग कहाँ कहाँ हो सकता है और प्ली बार्गेनिंग कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कि अगर मोलेस्टेशन, अगर किसी वुमेन का मोलेस्टेशन होता है तो उसमें प्ली बार्गेनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसमें भी हम हमेशा कहते हैं कि वुमेन के रिगार्डिंग मोलेस्टेशन भले ही एक लगता है कि स्मॉल है, but that is a direct attack on the right to privacy and right to life, liberty and dignity of the woman। तो वो एक सीरियस नेचर का ऑफेंसेज होगा। तो आप कुछ इस तरह के नेचर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन ऑफेंसेज में प्ली बार्गेनिंग अप्लीकेबल होगा, कौन कौन नहीं होगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन दिया हुआ तो चैप्टर का एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑफ लिखा हुआ है और यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ। और दूसरे में जब हम आएंगे तो दूसरा क्लास बी क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। अब यहाँ फॉर का मतलब क्या हुआ, फॉर का मतलब ये हुआ कि प्ली बार्गेनिंग किया जाए या न किया जाए उसका रिक्वेस्ट कौन कर सकता है। तो इसमें फॉर प्ली बार्गेनिंग का जो मैटर है वो सिंपल से यही बताता है कि एक्यूड ही एप्लीकेशन देगा प्ली बार्गेनिंग का। मतलब प्री प्ली बार्गेनिंग के लिए विक्टिम या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस ये सब नहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन कौन देगा, रिक्वेस्ट कौन करेगा, एक्यूड करेगा। मतलब पहला कंडीशन ये है कि एक्यूड इंटरेस्टेड होना चाहिए, अगर एक्यूड इंटरेस्टेड नहीं है तो प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। तो पहला हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। द चैप्टर का मतलब क्या हुआ, द जहां पे लग जाता है मतलब दैट इज द प्रोनाउन की तरह काम करता है, डिफिनिट नाउन की तरह काम करता है। और डिफिनिट डिफिनिट मतलब डिफिनिट की तरह काम करता है, डिफिनिट आर्टिकल की तरह। और यहाँ पे चैप्टर 21A की बात करता है, तो यहाँ पे कहता है कि कहाँ अप्लाई। दूसरा हो गया कि एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, तो कौन देगा, एक्यूड देगा। कैसे देगा, तो कैसे देगा में हम आपको बताएंगे कि एक वो देगा, एक रिटर्न में लिख करके देगा कि नहीं नहीं मैं, मेरे ऊपर ये चार्जेस हैं, मेरे ऊपर ये फैक्ट है और मैं प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूँ। और उसके साथ में एक एफिडेविट देगा और एफिडेविट में लिखेगा कि स्वर्ण करेगा, शपथ लेकर के लिखेगा कि जो हमारा, जो मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, सब कुछ मैं वॉलंटरली कर रहा हूँ, सब कुछ लिखेगा। और साथ साथ में भी लिखेगा कि हमें इससे पहले इससे पहले हमें किसी इसी तरह के सेम ऑफेंसेज में प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ हो। मतलब ये है कि अगर आपको प्रीवियस कन्विक्शन उसी ऑफेंसेज, उसी तरह के ऑफेंसेज में पहले भी हो चुका है, इसका मतलब कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, तो प्रीवियस कन्विक्शन अगर आपको हो रखा है उसी तरह के मामले में, तो आपको प्ली बार्गेनिंग का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये सारे डिटेल आपको एप्लीकेशन में लिख करके देना होगा। जब आप एप्लीकेशन में लिख करके देंगे, किसको देंगे, मजिस्ट्रेट को देंगे। किस मजिस्ट्रेट को देंगे, उस मजिस्ट्रेट को देंगे जिसके पास आपका ट्रायल चल रहा है। तो आपने एप्लीकेशन दे दिया और मजिस्ट्रेट उसको डिसाइड करेगा कि नहीं ये वॉलंटरली है, इनवॉलंटरली है। अगर वॉलंटरली है तो क्या होगा, इनवॉलंटरली है तब क्या होगा। अगर वॉलंटरली है तो हम क्लास सी की तरफ मूव करेंगे, अगर इनवॉलंटरली है तो वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और प्रोसीडिंग जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। तो यहाँ वॉलंटरली होना जरूरी है। तो दूसरा कंडीशन है कि बाई चांस आपको ये आया कि नहीं ये वॉलंटरली है, जज ने कहा कि ये वॉलंटरली है, चलो भाई आगे प्रोसीडिंग करते हैं, तो गाइडलाइन फॉर म्यूचुअली, हाँ तो आपको गाइडलाइन इशू होगा। गाइडलाइन क्या इस तरह का, गाइडलाइन में दिया हुआ है कि भाई आज दोनों पार्टी को नोटिस जाएगा, नोटिस जाएगा जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, किसको किसको नोटिस जाएगा मैं बताऊंगा, थोड़ा टेक्निकल है अभी बताता हूँ। और मान लीजिए कि आपने स्टार्ट हो गया सी के अंतर्गत, दोनों पार्टी आपस में बैठ करके कंक्लूजन कर ली, तो कंक्लूजन में भी यहाँ पर दो आएगा। देखो एप्लीकेशन में भी दो आएगा, वॉलंटरली है, इनवॉलंटरली है। इनवॉलंटरली है तो कहानी खत्म। अब कंक्लूजन में दो आएगा, पार्टी ने म्यूचुअली उसको सेटिस्फाई कर लिया, पार्टी ने अपना मैटर सेटल कर लिया म्यूचुअली, तब क्या होगा। और पार्टी ने म्यूचुअली सेटिस्फाइड नहीं किया तब क्या होगा। जब अब इसका आंसर डी देगा, अगर म्यूचुअली सेटिस्फाइड है तो उसकी रिपोर्ट बना करके जज लिख करके भेज देगा कि नहीं इसका मैटर का डिस्पोज हो गया, कहानी खत्म। अगर म्यूचुअली सेटिस्फाइड दोनों पार्टी नहीं है
तब क्या होगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर से जहां से केस चल रहा था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है ये रिपोर्ट तैयार करेंगे जज साहब, और बताएंगे कि इसका जो हमने एप्लीकेशन दिया गया था बी में, और जो पार्टी ने मिलकर के आपस में बातचीत किया, उसका रिजल्ट क्या आया। तो जो भी रिजल्ट आया वहां पे होगा। अगर रिजल्ट ये आया कि नहीं, पार्टी एग्री नहीं हो पाई, तो केस फिर से स्टार्ट। अगर रिजल्ट आया कि पार्टी एग्री हो गई है, तो अब क्या होगा। जब ये रिजल्ट आया कि पार्टी एग्री हो गई है, तो केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा। डिस्पोज मतलब कि फाइनली जजमेंट आ जाएगा, डिस्पोज कर दिया जाएगा। और जब डिस्पोज होगा तो वहां पे डिस्पोजल ऑफ द केसेस का मैनर लिखा हुआ है, कि जब डिस्पोजल ऑफ द मैनर में है तो अब तो म्यूचुअल सेटिस्फाइड हो गए, तो डिस्पोजल ऑफ मैनर में जब केस को आप डिस्पोज करेंगे तो 4 बात को ध्यान में रखेंगे। पहली बात आपको ध्यान में रखना होगा कि विक्टिम को क्या मिला, कंपनसेशन तो मिलना चाहिए, अदरवाइज विक्टिम क्यों कंप्रोमाइज करेगा। तो 4 पॉइंट इसमें ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट ये होता है कि विक्टिम को कंपनसेशन मिला कि नहीं मिला, इसको आप लोग को लिखना होगा। दूसरा पॉइंट ये लिखना होगा कि वो जो एक्यूज्ड है वो प्रोबेशन के लिए इंटाइटल है कि नहीं है। अगर प्रोबेशन के लिए इंटाइटल नहीं है, दूसरा पार्ट हो गया, या है, इसको लिखना पड़ेगा। तीसरा पार्ट लिखना होगा कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह का ऑफेंसेज में म्यूचुअली पार्टी सेटिस्फाइड हुई हैं, जहां की मिनिमम पनिशमेंट की बात हो, जब मिनिमम पनिशमेंट जिस ऑफेंस में प्रेस्क्राइब किया हो, तो वहां पर जब प्री बार्गेनिंग होगी, केस डिस्पोज होगा, तो वहां पे जहां मिनिमम लिखा हुआ हो तो उसका 1/2 पनिशमेंट आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस है जिसका लिखा हुआ कि मिनिमम पनिशमेंट शुड बी 2 इयर्स एंड मैक्सिमम शुड बी 5 इयर्स। तो मिनिमम मान लीजिए प्री बार्गेनिंग हो गई, तो मिनिमम कितना, 2000, 2 ईयर हुआ, तो 2 ईयर का हाफ पनिशमेंट जज आप दे सकते हैं। तो 12 दुना का 24, 2 साल का कितना पनिशमेंट हुआ, 24 मंथ। तो 24 मंथ में कितना तक का पनिशमेंट आप दे सकते हैं, 12 मंथ का दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्लियर हो गया कि पहला तो हो गया कि कंपनसेशन ध्यान में रखेंगे, दूसरा आप देखेंगे कि नहीं प्रोबेशन के लिए इंटाइटल है कि नहीं है, तीसरा आप देखेंगे कि नहीं कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, 1/2 दिया जाएगा जहां मिनिमम लिखा गया है। और चौथा पॉइंट है कि जहां 1/2 नहीं लिखा गया है, जहां मिनिमम पनिशमेंट नहीं लिखा गया है, वहां पर कंप्रोमाइज होने के बावजूद भी आप 1/4 पनिशमेंट दे सकते हैं। ये डिस्पोजल ऑफ केसेस में हम आपको डिस्कस करेंगे, 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे, कंपनसेशन डिस्कस करेंगे, प्रोबेशन डिस्कस करेंगे, एंड 1/2 पनिशमेंट डिस्कस करेंगे, 1/4 पनिशमेंट डिस्कस करेंगे। फिर जजमेंट ऑफ द कोर्ट लिखेंगे कि जजमेंट ऑफ द कोर्ट जो डिस्पोज किए हैं तो उसका जजमेंट आप लिखेंगे। तो जजमेंट लिखने के बाद आपको यह बता रहा है कि जजमेंट लिखेंगे। अब कह रहा है कि आगे वर्ड कह रहा है कि जब आप जजमेंट लिखेंगे ही, तो जजमेंट क्या होगा, जजमेंट फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट होगा। फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट का क्या मतलब होता है, जी लिखा हुआ है यहाँ पे, जी में फाइनलिटी ऑफ जजमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। इसमें कह रहा है कि प्ली बार्गेनिंग में अगर जो एफ में अगर डिस्पोज हुआ है केस, अगर वो जजमेंट क्या होगा, फाइनल होगा या उसके खिलाफ दूसरा पार्टी अपील में जा सकता है। तो इसके 2 पार्ट हैं। रूल क्या है, रूल क्या है कि अगर एक बार केस डिसाइड हो गया, डिस्पोज हो गया एफ में ई के अनुसार, तो वह क्या होगा, जजमेंट फाइनल हो जाएगा। इसके 3 एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है, आर्टिकल 136 एक्सेप्शन है। 136 एक्सेप्शन होने का मतलब ये होता है कि पार्टी एसएलपी फाइल कर सकती है उस जजमेंट के खिलाफ। एसएलपी का मतलब स्पेशल लीव पिटिशंस। अब देखो, प्ली बार्गेनिंग का जो लोअर कोर्ट में जो मैटर डिस्पोज हो रहा है उसका अपील नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा उसको चैलेंज कर सकते हैं एसएलपी के माध्यम से। दूसरा एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसमें आप रेट फाइल कर सकते हैं। रेट फाइल में क्या क्या रेट फाइल कर सकते हैं आप, रेट सर्स्योरारी को सर्स्योरारी और सर्स्योरारी का रेट फाइल कर सकते हैं। क्योंकि प्रोहिबिट और सर्स्योरारी में यही अंतर आता है कि सर्स्योरारी होता है टू सर्टिफाई द जजमेंट, टू सर्टिफाई द पॉइंट, और जो सर्स्योरारी और जो प्रोहिबिटरी नेचर के होते हैं वो जो मैटर पेंडिंग होता है तब होता है, लेकिन सर्स्योरारी जब होते हैं वो फाइनल हो जाता है तब होता है। तो यहाँ पे फाइनल जजमेंट के खिलाफ आप रिट पिटिशन फाइल करेंगे, तो कौन सी रिट पिटिशन फाइल करेंगे, आप सर्स्योरारी फाइल कर सकते हैं।
तो फाइनलिटी ऑफ जजमेंट तीसरा एक्सेप्शन है कि 227 में भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो जजमेंट रूल क्या है कि फाइनल हो गया, लेकिन कहाँ कहाँ कितने एक्सेप्शन है? 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन आर्टिकल 136 जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और 2 एक्सेप्शन हाई कोर्ट के रिगार्डिंग है, आर्टिकल 226 और 227। अब इस तरह का यहाँ जी तक का मैटर फाइनलिटी ऑफ जजमेंट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक आदमी ये चैप्टर कहाँ अप्लीकेबल होगा, अप्लीकेशन कौन देगा, क्यूड देगा, कैसे देगा, अगर देता है तो कैसे उसका डिस्पोज किया जाएगा, पार्टी को कैसे नोटिस दिया जाएगा, किसको उसको बुलाया जाएगा, और अगर पार्टी आती है केस को डिस्पोज करती है तब क्या होगा, डिस्पोज नहीं होता है तब क्या होगा, अगर पार्टी एग्री हो गई तब तो आप डी में आएंगे, एग्री नहीं हुई तो आप पीछे चले जाएंगे। अगर डी में आप आ गए तो उसको डिस्पोज कैसे करेंगे? डिस्पोज करेंगे ई के हिसाब से। 4 पॉइंट ध्यान में रखना होगा, कंपनसेशन, प्रोबेशन, और 1/2 पनिशमेंट कब दिया जा सकता है, 1/4 पनिशमेंट कब दिया जा सकता है। अगर उसके हिसाब से आपने जजमेंट लिख दिया तो जजमेंट क्या होगा? जजमेंट फाइनल होगा। तो फाइनल होगा तो क्या कोई एक्सेप्शन है? तो हाँ, इसके 3 एक्सेप्शन है। कौन कौन है? आर्टिकल 136, आर्टिकल 136, 226, 227। इस तरह के जजमेंट फाइनल हो गए, फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट हो गया। अब हम यच की कैटेगरी में आते हैं। जब हम यच की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग के सर्कमस्टांसेस आता है। एक बात और बता रहा हूँ, यह सेक्शन के स्टूडेंट्स को मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर किसी को भी हिंदी लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। बाद में नया क्लेम करने लगो कि हाँ सर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाया था, हम इंग्लिश में हिंदी में नहीं समझ पा रहे थे, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग कह रहे हो इसीलिए हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तुम लोग कहोगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने सीआर को इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर इवन सिंगल स्टूडेंट्स भी अगर कहेगा कि सर हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश होता है। अगर लेकिन आप लोगों का रिक्वेस्ट है तो ठीक है, हिंदी में चल रहा है, लेकिन अगर किसी को भी अनकंफर्टेबल हुआ तो हमें इन्फॉर्म कर दें। ये नहीं कि बाद में जाकर कंप्लेन करने लगो कि सर आपने हिंदी में पढ़ाया, ये किया वो किया, तो ये सब भाई ठीक बात नहीं रहेगी। ठीक ना? हाँ, तो चलो, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर द जी दैट द फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। Regarding the finality of the judgment, here is that there are only 3 exceptions. There are rule is that G can be divided into 2 parts. First is the rule and second is the exceptions. And the rule is that once a judgment has been decided on the basis of plea bargaining, in that matter appeal cannot be referred. But there are 3 exceptional circumstances when this judgment can be challenged. And those 3 exceptional exceptions are that first is that Article 136, which deals about the special leave petitions which is filed before the Honorable Supreme Court, and the second is that the writ petitions you can file before the High Court, and certiorari writ petitions can be filed here is that, and some others may be. In that points regarding the 226, and third is the 227. These are the exceptions. H section H talks about the power of court in plea bargaining. अब एच में बताया गया है कि अगर जो कोर्ट को हम अगर प्ली बार्गेनिंग का पावर दे रहे हैं तो उसको हम कुछ एक्स्ट्रा पावर देंगे। जैसे कुछ मैटर में हम प्ली बार्गेनिंग के, कुछ मैटर में हम बेल का पावर उसको नहीं देते हैं, लिमिटेड पावर रखते हैं, या सम्मन वारंट इस तरह का पावर। तो यहाँ पे रख रहा है कि जो भी उसको नेसेसरी होगा उसको इस प्ली बार्गेनिंग को मतलब फाइनलाइज करने में, तो उस तरह का पावर हम कोर्ट को दे रहे हैं। अब क्या है कि पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये देखो बहुत ही कॉमन सेक्शन है, इसमें हमें कोई सरप्राइज नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि आपका केस चल रहा है, केस होने के बाद आपको अरेस्ट किया गया है, आप उसको ट्रायल चल रहा है लेकिन आप जेल में है। जेल में कितने दिन के लिए रह गए? आपको 2 महीने जेल में ही रह गए, और उसके बाद आपको हो गया, आपको प्ली बार्गेनिंग हुआ। प्ली बार्गेनिंग में आपको सजा, केस डिस्पोज होने के बाद भी आपको कितना सजा मिली? 6 महीना का मिला। तो अब प्ली बार्गेनिंग का डिस्पोज होने के बाद 6 महीना का मिला, और पहले अब 2 महीना जेल में रह चुके हैं, तो अब आपको कितने महीने जेल में रहना पड़ेगा? तो कह रहा है कि जो टाइमिंग आप जेल में ऑलरेडी रह चुके हैं उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा।
सेट ऑफ का मतलब होता है उसमें से वो घटा दिया जाएगा। अब सीआरपीसी में कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इस तरह के इम्प्रिजनमेंट को सेट ऑफ करता है? तो इस तरह के इम्प्रिजनमेंट की रिगार्डिंग सेक्शन 428 सीआरपीसी का है, जो इस तरह का है। नॉर्मली हर केस में यही होता है, सेट ऑफ का प्रोविजन हमेशा रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप 6 साल जेल में रह गए और फाइनल जब कन्विक्शन हुआ तो आपको 12 साल की सजा मिली, तो वहां पर आपको 6 साल का जो टाइमिंग होता है, जो आप ऑलरेडी ट्रायल के दौरान रह चुके हैं, तो वहां को सेक्शन 428 के अंतर्गत आपको सेट ऑफ कर दिया जाता है, मतलब उसमें से कम कर दिया जाता है। तो ये जो आई सेक्शन है, आई को हमेशा आप किसके साथ पढ़ेंगे? सेक्शन 428 सीआरपीसी के साथ आप पढ़ेंगे। कुछ सेविंग्स के प्रोविजंस हैं, कुछ को सेव किया गया है और हम आगे देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि एक्यूज को सीधा सीधा कहा जाता है कि एक्यूज को फ्री माइंड दिया जाता है। जैसे एक्यूज को कहा जाता है, जैसे प्ली बार्गेनिंग जब होगी, जब आपस में पार्टी दोनों आपस में बैठेंगी, तो कुछ गलती वो अपना एक्सेप्ट करेगी, कुछ गलती ये एक्सेप्ट करेगी, तभी तो भाई प्ली बार्गेनिंग होगी, तभी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप रिजिड रहें तो रिजिड होने पर तो कुछ ऑप्शन निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर कहा गया, इसीलिए सीधा सीधा लिख दिया गया है कि यहाँ पर जो भी एक्यूड प्ली बार्गेनिंग के दौरान कहेगा, बातचीत करेगा, जो भी प्रॉब्लम अगर उसको आएगी, तो जो भी स्टेटमेंट कहेगा वो किसी और मामले में यूज नहीं होगा, मतलब प्ली बार्गेनिंग तक ही उसका स्टेटमेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे ऊपर कोई केस चला और केस के दौरान ये ब्लेम लगाएगा, जैसे चोरी का केस चला, थेफ्ट का केस चला, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई चलो मैं मान लिया कि हमने गलती कर दिया था, हमने चोरी कर लिया था, लेकिन अब तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो और हमारी सजा को कम करवा दो। तो इस तरह का हमने तो कह दिया कि चलो ठीक है, हम मान लिया कि मैंने गलती कर दिया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ठीक है मान लिया मैंने गलती कर दिया, मेरी सजा को कम करा दो, अब दूसरा पार्टी रिजिड हो गया, उसको मौका मिल गया, अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं, अब तुमने तो कन्फेशन कर लिया है, तो अब तुम्हारा वो हो गया, तुम्हारे ऊपर हम केस चलाएंगे, अब केस का प्ली बार्गेनिंग नहीं करेंगे, अब जाओ जो होगा सो होगा, अब हम जा रहे हैं। अब दूसरा पार्टी उठकर चला गया और हम यहाँ पे कह दिए उसको कि हाँ मैंने थेफ्ट किया था। अब अगले दिन वो आया कि कोर्ट में और कहने लगा कि हाँ प्ली बार्गेनिंग के दौरान जब बातचीत चल रही थी तो इसने कहा था कि हाँ हमने थेफ्ट किया। तो क्या अब मैंने जो प्ली बार्गेनिंग के दौरान पार्टी से बात कही थी, क्या उसका यूज होगा? नहीं, उसका यूज नहीं होगा। उसका यूज इसलिए नहीं होगा किसी और पर्पज के लिए, अदरवाइज प्ली बार्गेनिंग कभी होगी ही नहीं, कोई पार्टी अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, के मींस कृष्ण मुरारी का यही मतलब होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज नॉट टू बी यूज सिर्फ और पर्पज के लिए यूज नहीं होगा। अब एक यल सेक्शन है जो सबसे लास्ट का प्रोविजन है। यल यल का मतलब होता है एक यहाँ पर एक और एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है। यल जब भी तुम लोग पढ़ोगे तो यल को पढ़ने के लिए हमें 1 से कोरिलेट करेंगे। क्या करेंगे? हम 1 को 12 के साथ पढ़ेंगे। अब 1 को 12 के साथ हम क्यों पढ़ेंगे? अब एक कहता है, 1 कह रहा था कि कहाँ कहाँ चैप्टर अप्लीकेबल नहीं होगा, तो यल भी एक सेक्शन है, वो भी बताता है कि कहाँ पर ये चैप्टर अप्लीकेबल नहीं होगा। देख रहे हो ना, ए एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। हेडिंग का बस थोड़ा सा फासला है, लेकिन बात जब हम आएंगे, जब ए जो है वो दो बात करता है, एप्लीकेशन का भी नॉन एप्लीकेशन का भी, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन दिया हुआ, उसी से हम नॉन एप्लीकेशन का लगाते हैं। तो ए का जो चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ? एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। और लास्ट का जो चैप्टर है उसका क्या नाम लिखा हुआ? नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो हमें आई होप दैट तुम लोग इसके मदद से तुम लोग याद कर लोगे कि ए में क्या लिखा हुआ, एल में क्या लिखा हुआ है। देखो एल में ये लिखा हुआ है कि भाई जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो था पहले का, जो 2000 एक्ट का था, तो उसमें डिफाइन किया गया था, चाइल्ड के रिगार्डिंग एक डिफिनेशन थी। तो वहां पे कह रहा था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मामले में प्ली बार्गेनिंग अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये कहने का मतलब था कि उस एक्ट के अंतर्गत जो भी मैटर चल रहे हैं उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। तो अब देखो एक बात बता दूं कि 2015 में एक नया एक्ट आ गया है, और जो 2000 का जो एक्ट था, जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब नया एक्ट क्या आ गया है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। तो अब अनफॉर्चुनेटली नया एक्ट तो आ गया है, और एल को अभी तक वो नहीं किया गया है, मतलब कि मॉडिफाई या कुछ किया नहीं गया। ये जो है एल जो है पुराना ये भी है, उसी तरह का है।
तो एल की आज की डेट में रिलेवेंसी नहीं रह गई है, क्योंकि एल कहता है कि ये चैप्टर कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, तो कह रहा है कि जो जुनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का है उसके अंतर्गत अप्लीकेबल नहीं होगा, जबकि 2000 का एक्ट ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरह का जो चैप्टर है मैं हम डिस्कस करूंगा। तो ए से ए के साथ हमने एल पढ़ लिया और इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ लिए। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर 21A के अंतर्गत एप्लीकेशन, नॉन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। तो ऐसे याद कर लेना, सब याद हो जाएगा, बहुत इजी काम है, सब बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हमने इंट्रोडक्शन लिया है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने यही लिखा है कि प्ली बार्गेनिंग क्या है भाई। तो अब लिखा हो कि प्ली बार्गेनिंग इज ए मूड नहीं होना चाहिए, मोड होना चाहिए, गलत है यहाँ पे। एक मिनट, आई हैव सम करेक्शंस। मोड करेक्शन, मोड, ओके, रादर देन मोड। तो प्ली बार्गेनिंग क्या है? प्ली बार्गेनिंग एक, यहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेंगे बाद में, ये है जो कि मूड नहीं होता है, ये होता है मोड होता है। हाँ, तो कह रहा है कि प्ली बार्गेनिंग क्या है? एक मोड है, क्या करने का है कि टू रिड्यूस द बर्डन ओवर, टू रिड्यूस बर्डन ऑफ द कोर्ट एंड सेव द टाइम एंड एनर्जी ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इसका मेन पर्पज इसीलिए लाया ही गया था। और कैसे आया है? तो 142nd रिपोर्ट है, 154th रिपोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, और मालूमात कमेटी ने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब हम इन तीनों रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या किया गया था। तो 142nd रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पर हम जब जाएंगे, तो ये कब सबमिट हुआ था? 1991 में सबमिट हुआ था। तो यहाँ पे देखो सारा मैं डिटेल इसके लिख रखा हूँ। इसमें यही एक फायदा होता है कि जैसे एक है ऑप्शन, कभी भी अगर आप पीडीएफ फाइल पढ़ रहे हो तो यहाँ पर अगर कंट्रोल करके अगर हम क्लिक कर दें तो ये मेन जो फाइल है वो खुल जाएगी। अब तुरंत चेक कर सकते हो कि सर ने सही लिखा है, गलत लिखा है, क्या है, कैसे है। तो मैं लिखा हूँ। और तो हमने लिखा है कि अब इस कमीशन में कुछ इंपॉर्टेंट बात किया गया था, तो हमने क्या किया, इसी कमीशन की रिपोर्ट की हेल्प से मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। अब इस कमीशन में कहा गया था, ओरिजिन ऑफ प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग की ओरिजिन क्या हो, कहाँ से आई है? तो इसमें कहा गया था कि प्ली बार्गेनिंग की ओरिजिन कहाँ से हुई है? यूएसए से हुई है। यूएसए मतलब अमेरिका से हुई है। अब ये रिपोर्ट में कहाँ पे लिखा गया है? तो रिपोर्ट जब खोलोगे यहाँ पे क्लिक करके, तो उसमें एक पैरा दिया हुआ है, पैरा 3.331 पैरा है। पेज नंबर उसका कितना है? पेज नंबर 5 पर बात लिखी गई है, पेज नंबर 5 है। तो इस तरह का तुम लोग वहां पढ़ लोगे कि वहां पे ओरिजिन ऑफ प्ली ऑफ बार्गेनिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है? यूएसए से हुई है। तो जब रिपोर्ट में यूएसए के बारे में, पूरा यूएसए और कनाडा के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है इस रिपोर्ट के बारे में, इस रिपोर्ट में। अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं कि देखो हमारे सीआरपीसी में तो प्ली बार्गेनिंग वर्ड को डिफाइन किया नहीं गया है, तो लेकिन इस रिपोर्ट में प्ली बार्गेनिंग को डिफाइन किया गया था। तो हमने देखा कि पहला पॉइंट क्या था? ओरिजिन था। दूसरा है कि मीनिंग क्या है। तो मीनिंग क्या रिगार्डिंग क्या था कि मीनिंग यही है कि मीनिंग देखो, हमेशा एक बार बता दे रहा हूं कि कोई भी रिपोर्ट हो, कोई जजमेंट हो, समझ करके मीनिंग अपने वर्ड में लिखा करो, अपने वर्ड में लिखा करो। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट इसका नहीं होता है। लेकिन अगर हम पढ़ने की बात करेंगे इसका मीनिंग क्या है, तो इसमें सिंपल समझा सकते हैं कि प्ली बार्गेनिंग रेफर्स टू प्री ट्रायल निगोशिएशंस बिटवीन द डिफेंडेंट। किसके किसके बीच में होता है? ए प्री ट्रायल निगोशिएशन होता है। किसके बीच में होता है? डिफेंडेंट के बीच में होता है। और यूजुअली कंडक्टेड बाय द काउंसिल, और ये यूजुअली डिफेंडेंट की तरफ से कौन कंडक्ट करता है? काउंसिल कंडक्ट करता है। एंड प्रोसिक्यूशन, और अपोजिट पार्टी की तरफ से कौन होती है? प्रोसिक्यूशन होता है। ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट एग्री टू प्लीड गिल्टी, जिसके दौरान एक्यूज क्या करता है? अपना गिल्टी प्लीड करता है। जैसे मैं कह नहीं रहा था कि जैसे कि प्ली बार्गेनिंग के लिए हमने बैठा और हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई चलो मैंने थेफ्ट किया है। तो जब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं एक्यूज हूँ कि मैंने थेफ्ट किया है, तो मैं क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन यही है कि इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन कंसेशन बाय द प्रोसिक्यूटर,
तो मैं भी ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं तो मूर्ख तो हो नहीं कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ मैंने थेफ्ट किया है जब तक कि मुझे कोई फायदा ना हो। तो मुझे इसमें फायदा ये हो रहा है कि वहां पे प्रोसिक्यूटर से मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोसिक्यूटर मुझे कुछ कंसेशन देगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम प्रोसिक्यूटर कहेगा कि ठीक है चलिए, मैं आपको जब थेफ्ट का जब पनिशमेंट की बात होगी तो हम वहां पर आपको कहेंगे कि इनको मिनिमम पनिशमेंट दिया जाए या पनिशमेंट न दिया जाए, जो भी हो इस तरह का कंसेशन होगा। तो इस तरह का प्ली बार्गेनिंग क्या है? प्ली बार्गेनिंग जो होता है प्री ट्रायल नेगोशिएशन है। तीन पार्ट है इसके। प्री ट्रायल क्या है? ये प्री ट्रायल नेगोशिएशन है। किसके बीच में होता है? डिफेंडेंट की तरफ से होता है, दैट इज द एक्यूज होता है, और दूसरे के साइड में प्रोसिक्यूटर होता है, बिटवीन दीज टू पर्सन। तो सेकेंड पार्ट हो गया। और उसमें होता क्या है? तीसरा पार्ट इसका यह है कि उसमें एक्यूज प्लीड करता है, और प्लीड करने का रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि सर्टेन कंसेशन। तो हमने इसके 4 पॉइंट में डिवाइड कर लो। कितने पार्ट हो गए प्ली बार्गेनिंग के? प्ली बार्गेनिंग के 4 पॉइंट हो गए। तो पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि प्री ट्रायल नेगोशिएशन है। सेकेंड है कंडक्टेड बिटवीन द काउंसिल एंड प्रोसिक्यूशन। सेकेंड है कि एक पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। काइंड्स ऑफ बार्गेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी में दो तरह की बार्गेनिंग की बात हुई थी। चार्ज बार्गेनिंग की बात हुई थी और सेंटेंस बार्गेनिंग की बात हुई थी। कई बार लोग इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि भाई चार्ज बार्गेनिंग क्या है, सेंटेंस बार्गेनिंग क्या है। तो चार्ज बार्गेनिंग क्या होती है? जैसे हमारे ऊपर हेड ऑफ चार्जेस हुए, हमारे ऊपर चार्ज लगे कि मैंने 4 ऑफेंस किया है, चार लगा कि मैंने थेफ्ट किया है, चीटिंग किया है, एक्सटॉर्शन किया है और रॉबरी किया है। तो हमारे ऊपर 4 तरह के ऑफेंस चार्ज लगे हुए हैं। तो हमने एक्यूज से जब प्रोसिक्यूशन, जब हमारी प्ली बार्गेनिंग शुरू हुई, तो प्रोसिक्यूटर से मैं कह रहा हूं कि देखिए भाई हमें कुछ कंसेशन दे दीजिए चार्ज के रिगार्डिंग। तो क्या कंसेशन? तो हमने डिमांड किया कि आप ऐसा करिए कि 4 चार्ज में से 3 चार्ज को आप वेव कर दीजिए। 3 चार्ज के लिए आप मुझे जैसे कि थेफ्ट का है, एक्सटॉर्शन का है, चीटिंग, अरे एक्सटॉर्शन, चीटिंग और रॉबरी का आप ड्रॉप कर दीजिए। मेरे खिलाफ सिर्फ एक चार्ज चलवाइए जो कि थेफ्ट का हो। तो इस तरह का जो बार्गेनिंग होगा तो चार्ज बार्गेनिंग का होगा। और सेंटेंस बार्गेनिंग क्या होता है? सेंटेंस के मुद्दे पर बार्गेनिंग होती है कि भाई देखो पनिशमेंट तो 6 साल का है लेकिन हमें आप 6 महीना दिलवा दीजिए। तो इस तरह का सेंटेंस बार्गेनिंग होता है। तो इस तरह के जो प्लीडिंग, तो काइंड्स ऑफ बार्गेनिंग कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। अब तुम्हें देखना होगा कि ये कहाँ पे डिस्कस किया गया काइंड्स ऑफ बार्गेनिंग का। देखो अभी तक कोई बुक है नहीं, तो हमने ओरिजिनल रिपोर्ट ही निकाल कर पढ़ा है। तो 157 का जो फुटनोट में दे रखा हूं, तो जब वहां पे तुम जाओगे तो मिल जाएगा। 157 का जो रिपोर्ट है उसमें पैरा नंबर 3.1 है, पेज नंबर 5 है, और रिपोर्ट है आपका 142वीं रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का है। इसी रिपोर्ट में कहा गया था, पहला तो क्या गया, ओरिजिन कहां से हुई है? ओरिजिन यूएसए से हुई है। मीनिंग क्या है? तो मीनिंग के 4 पार्ट हैं। काइंड्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, चार्ज बार्गेनिंग होते हैं, सेंटेंस बार्गेनिंग। तो चार्ज बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने बता दिया जो अभी भी समझाया था। सेंटेंस बार्गेनिंग का भी बता दिया। अब कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जस्टिफिकेशन। और अब इसमें ये आया कि भाई आखिर प्ली बार्गेनिंग को चैप्टर में अगर सीआरपीसी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अगर लाया जाएगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? क्योंकि कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगा। कोई भी हम काम करेंगे तो फायदे के लिए करेंगे, पब्लिक के फायदे के लिए। ऐसे तो मूर्ख है नहीं कि नहीं हम ऐसे काम करते रहें। तो जस्टिफिकेशन क्या है? तो जस्टिफिकेशन को तुम लोग पढ़ लेना। तो ब्रीफ में यही है कि एक्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा होगा। एक्यूट को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रिफॉर्मेटिव होता है, उसको रिफॉर्म करने का एक वो मिलता है, सर्टेनिटी मिलती है, रिफॉर्मेटिव होता है। और कई बार ये होता है कि जैसे अनसर्टेनिटी होती है, जैसे मान लीजिए सलमान खान का मैटर है। अब सलमान खान से एक बार पूछा गया था कि भाई आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनका यही कहना था कि देखिए भाई शादी क्यों करें, भाई हमारा तो फ्यूचर सर्टेन है ही नहीं। पता चले कि हम शादी करें और हम कन्विक्शन हो जाए और हम जेल की सजा काटने लगे, 6 साल का जो भी सजा है, सजा हमें काटना पड़ जाए, तो हम किसी का फ्यूचर क्यों बर्बाद करें? अब मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने सीरियस होकर कहा था या मजाक में कहा था, लेकिन उनका यही लॉजिक था। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर अनसर्टेनिटी रहती है कि हमें क्या होगा, फ्यूचर में क्या नहीं होगा, तो आदमी अपना प्री प्लानिंग अरे नहीं कर पाता है, फ्यूचर की प्लानिंग उसकी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे एक्यूट को भी फायदा होता है, चलो यार कोई बात नहीं, इतने साल तक केस लड़ने से क्या फायदा होगा,
इससे अच्छा कि 4 महीने का जेल ही सजा काट करके कम से कम लाइफ तक रन करने लगेगी, बाल बच्चे सब ठीक ठाक से रहने लगेंगे। तो एक्यूज को यहाँ पर भी एक वो मिलता है, कंसेशन मिलता है। पहला तो कंसेशन मिलता है, और दूसरा है कि लाइफ में सर्टेनिटी आ जाती है 4 महीने 6 महीने बाद। और तीसरा है कि उसको रिफॉर्म होने का चांस मिलेगा, रिफॉर्म होने का चांस मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए किसी को गाली दे दीजिए, बाद में बोलिए अरे सॉरी भैया गलती हो गई, तो भी कहता है चलो यार मान लिया तो कोई बात नहीं। तो सोसाइटी भी उसको रिफॉर्म के रूप में अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है गलती हुआ तो क्या हुआ, लेकिन बेचारे ने तो गलती मान तो लिया, चलो जो भी हुआ तो ठीक ठाक से रहने दो इसको। तो ठीक से वो रिफॉर्मेटिव का भी होता है। तो लाइफ में एक सर्टेनिटी आती है, दूसरा रिफॉर्मेटिव होता है। और अन्य मैटर में भी कई तरह के होते हैं, जैसे इंड ऑफ अनसर्टेनिटी, अभी अभी जो बता रहा था। लाइफ में अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है कि नहीं फ्यूचर में हमें जेल जाना होगा, क्या होगा। जैसे होता है ना कि आदमी को सोच करके भी बहुत डर लगता है फ्यूचर में क्या होगा। तो आदमी कहता है ना जितना हम सोचने से सोच करके मरते हैं, उससे अच्छा तो हम एक्चुअल में चले जाएं। तो यहाँ पे सर्टेनिटी खत्म होती है, अनसर्टेनिटी खत्म होती है। और लिटिगेशन का टाइमिंग भी, कास्ट भी कम पड़ता है। आप केस लड़ने में जान रहे बड़े बड़े वकील रखेंगे, छोटे मोटे जो भी हो, तो आपको कास्ट उसका देना पड़ेगा। तो एक है कि फैमिली रन कराना है, फैमिली रन कराएंगे केस लड़े, तो लिटिगेशन का भी कास्ट बचता है। सेविंग ऑफ एनेक्सिटी कास्ट, तो इस तरह का भी है कुछ, इस इधर उधर के जो भी है खर्चे सब बचते हैं। बीइंग एबल टू नो हिज और हर फेट, वो इस तरह से अपने फ्यूचर को जान जाता है कि मेरा फ्यूचर क्या है कैसे है, और एक अन्य तरह से अपने फ्रेश लाइफ को स्टार्ट कर देता है, विदाउट फियर हैविंग टू अंडरगो पॉसिबल प्रिजन सेंटेंस इन फ्यूचर डेट डिसरप्टिंग हिज लाइफ और कैरियर। अब वहां पे इसको इस तरह का फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोर्ट के लॉयर की जो ऑफिस होता है, बार बार विजिट करना पड़ता है, विटनेस आना जाना पड़ता है, और डेट पर डेट पड़ती है, एडजर्नमेंट आता है, सारा झंझट खत्म। मतलब प्ली बार्गेनिंग करिए, सारी कहानी खत्म। तो जो 10 साल आपको लगेगा, 10 साल 15 साल जो आपको जो मैटर को सॉल्व करने में मेंटली जो टार्चर होते हैं, वो 4-5 महीने में मैटर को सेटल्ड हो जाता है। और जब सेटल्ड हो जाता है तो ये इस तरह के फायदे एक्यूज को मिलते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। और कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा होगा, कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि बर्डन कोर्ट से खत्म हो जाएगा। तो जब कोर्ट का बर्डन जब खत्म होगा तो पब्लिक, तो कोर्ट जो है सीरियस मैटर के जो है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उन पर अपना ध्यान लगाएगी, उनका स्पीडी मैनर में डिसीजन होगी। तो जब स्पीडी मैनर में डिसीजन होगा तो डिटरेंट इफेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी में क्राइम कम होगा। और जेल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या फायदा होगा, जेल एडमिनिस्ट्रेशन को यह फायदा होता है कि भाई जेल में संख्या कम रहेगी, कम रहेगी तो हर चीज मेंटेन रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक से रहेगा। तो जेल को खर्चे भी उसके बचते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं है सर। तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा होता है, एक्यूज को फायदा हमने डिस्कस कर दिया, कोर्ट को फायदा हमने डिस्कस कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस कर दिया। फिर हायर कन्विक्शन रेट का भी एग्जाम्पल दिया गया था। हायर कन्विक्शन रेट का मतलब यूएसए में देखा गया था कि प्ली बार्गेनिंग आने से 75% मामले में कन्विक्शन होना शुरू हो गया है। तो इस तरह का आ गया कि जैसे हमारे यहाँ प्रेजेंट सिस्टम में 75 से 90% क्रिमिनल केसेस, इफ नॉट मोर, एक्विटल। तो ये कह रहा है कि जितना रेट वहां पे अमेरिका में कन्विक्शन का है, उतना तो हमारे उससे ज्यादा रेट हमारे यहाँ एक्विटल का है। तो आप क्या चाहते हैं, आप एक्विटल चाहते हैं क्रिमिनल का, कि कन्विक्शन चाहते हैं? क्योंकि लॉ की इतनी पेचीदगियां रहती हैं, धीरे धीरे इस तरह का होता है कि वहां पे फाइनली जाते जाते एक्विटल रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कहा गया कि हमें अपना कन्विक्शन रेट बढ़ाने की जरूरत है, जैसा कि यूएसए में आने के बाद बढ़ा है। तो इसका कहने का मतलब है इस तरह से हमारे यहाँ चेंजेस आएंगे। अब इन दिस रिपोर्ट इट वाज, कहा गया कि सीआरपीसी में इस तरह का नया चैप्टर आप इंसर्ट करिए, लेकिन चैप्टर का नाम नहीं दिया गया था। जो चैप्टर का नाम दिया गया था वो 154th रिपोर्ट में चैप्टर का नाम दिया गया था। 154th रिपोर्ट को भी हमने लिख लिया, और यहाँ पे सीधा सीधा एक चैप्टर का नाम ही दिया गया था, चैप्टर 21 प्ली बार्गेनिंग को आप एक्सेप्ट करिए। और इसने भी कहा गया था जो रिपोर्ट में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 142 में डिस्कस कर दिया, बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया है। अब उसको बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आप इंसर्ट करिए। मालूमात कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, तो मालूमात कमेटी ने भी अपनी इसी बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से तीनों रिपोर्ट के बाद और हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ओरिजिन डिस्कस कर लिया, मीनिंग डिस्कस कर लिया, काइंड्स डिस्कस कर लिया, जस्टिफिकेशन डिस्कस कर लिया। जस्टिफिकेशन में एक्यूज को फायदा क्या होगा, कोर्ट को क्या होगा, जेल प्रशासन को क्या होगा,
और उसमें वहां पर एक और था कि वहां पे विक्टिम को क्या फायदा होगा, वहां पे डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन हमने अब बाद में अपने तरफ से 4 पॉइंट ऐड किया है कि विक्टिम को फायदा क्या होगा। तो विक्टिम का भी फायदा तो होगा तभी तो, अगर विक्टिम को फायदा नहीं होगा तो विक्टिम क्यों जाएगा। तो विक्टिम का फायदा करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि बेनिफिट, बेनिफिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। बेनिफिट टू द एक्यूड है, बेनिफिट टू द सॉरी विक्टिम, एक्यूड एंड स्टेट। स्टेट में आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जेल प्रशासन, कोर्ट, न्याय कचहरी, सब कुछ स्टेट के अंतर्गत आता है। तो विक्टिम को पहला फायदा तो ये होता है कंपनसेशन मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कि 10 साल बाद अगर मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपया मिलता है, तो 1 लाख रुपया उस समय क्या वैल्यू रहेगा, कौन लेगा नहीं लेगा। तो इस तरह से कंपनसेशन जब मिलता है तो फॉर टाइम बिंग के लिए एक रेमेडी मिल जाती है। तो पहला है कि यहाँ पे कंपनसेशन मिल जाता है विक्टिम को। और दूसरा बात है सेटिस्फेक्शन होता है कन्विक्शन का। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ठीक है चलो भाई 10 साल की सजा नहीं हुई, 4 साल की सजा हुई, जेल तुम्हें भिजवा दिया, अपनी औकात में आ गए, तो एक तरह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि फाइनली मैंने अपना न्याय ले लिया। तो हमारे कहने मतलब कि ना 10 साल सही, लेकिन 5 5 महीना रहे ना 6 महीना रहे ना, तो उतना भी काफी है। तो इस तरह से जब कन्विक्शन होता है तो विक्टिम को भी सेटिस्फेक्शन होता है। तो देखो यहाँ कन्विक्शन में 2 तरह के फायदे हैं। एक्यूट को फायदा होता है कि चलो यार हमें 10 साल की जगह हमें 5 ही महीना, 10 साल कह रहा हूँ, हमें मान लीजिए कि 5 साल की सजा होने की जगह हमें 5 ही महीना का हुआ, तो उसको भी फायदा होता है। और विक्टिम को फायदा होता है कि चलो भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ ना फायदा हुआ तो कुछ तो फायदा हुआ, 5 साल ना सही 5 महीने का सजा हुआ। एक यहाँ पर ये भी हो गया कि सेटिस्फेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन हो गया। अब उसको भी, विक्टिम को भी वो मिलता है सेविंग ऑफ टाइम, टाइम उसका बचता है कि उसको भी कोर्ट में आना जाना पड़ता है ये। और एडवोकेट को खर्चे भी बहुत सारे देने पड़ते हैं, तो लीगल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे कंपनसेशन मिला, सेटिस्फेक्शन हुआ, टाइम बचा, पैसा बचा। और पीस ऑफ फ्यूचर, पीस ऑफ फ्यूचर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जब कोर्ट का जजमेंट आता है तो उसमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि एक पार्टी सेटिस्फाइड रहता है, एक पार्टी अनसेटिस्फाइड रहती है। तो जो पार्टी अनसेटिस्फाइड रहता है वो आगे अपील में चला जाता है, या आगे भी धमकी उमकी देते रहता है, मैटर फाइनली मतलब वहां पे दिल आपस में मिलते नहीं है। लेकिन प्ली बार्गेनिंग से क्या होता है, आपस में दो दिल जुड़ जाते हैं, चलो यार ठीक है जो भी हुआ सो हुआ, अब फ्यूचर में हम दोनों ठीक ठाक से रहेंगे। तो यहाँ पे पीस इन फ्यूचर। लेकिन जो जजमेंट वाले होते हैं, जो नॉर्मल जजमेंट होते हैं, जो लड़ करके जो जीते हारे जाते हैं, उनमें वो पीस नहीं आती है, कहीं ना कहीं मन मुटाव बना रहता है। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में शांति आती है, पीस आती है, और सर्टेनिटी भी आती है। इसका भी एक लाइफ में सर्टेनिटी आ जाती है, चलो यार एक तरफ से तो हमारा झंझट खत्म हुआ, शांति से हम पढ़ाई लिखाई दें, अपना ध्यान रखें। तो इस तरह का विक्टिम को फायदा हुआ। तो विक्टिम को हमने टोटल 4 बेनिफिट है। एक्यूट को हमने बता दिया कि आपको 142वीं रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है, और स्टेट को भी वहां पे जो फायदा है वहां पर हमने आपको डिस्कस कर दिया। तो इस तरह से हमने आपको दिखा कि स्टेट और एक्यूट को क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, वो हमने अपनी 142वीं रिपोर्ट की हेल्प से आपको डिस्कस कर दिया। तो अब इस तरह से हम आते हैं, अब सीआरपीसी की बात आती है। सीआरपीसी में हम आते हैं तो अभी अभी मैं आपको बता भी दिया था कि एक्ट का नाम तो 2005 है, लेकिन इनेक्ट कब हुआ था, 2006 में हुआ था। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, तो 5 जुलाई 2006 इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, 5 जुलाई 2006। हाँ अब इस तरह से हम आते हैं बेयर प्रोविजंस पे डिस्कस करने के लिए आते हैं। तृप्ति, तृप्ति एक गिलास पानी देना यार, एक गिलास पानी देना, एक गिलास पानी। Now I will start the bare provisions one by one. That is the section 265A. I will start from here. Now I will start the application of the chapter. Here is that I have divided into 2 parts. First is that the application.
फर्स्ट इज दैट एप्लीकेशन, यह कहाँ कहाँ पे किस किस मामले में अप्लाई होगा। और दूसरा है कि नन एप्लीकेशन। जो नन एप्लीकेशन को है, तो नन एप्लीकेशन को हमने देखो अभी यहाँ पे आपको 3 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। 285A भी पढ़ना पड़ेगा, बी भी पढ़ना पड़ेगा और एल भी पढ़ना पड़ेगा। यल मैंने अभी अभी बता रहा था कि यल में क्या है, तो यल में यही था ना कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 का है, तो उस एक्ट के मामले में प्ली बार्गेनिंग अप्लीकेबल नहीं होगा। बी क्या है, तो बी वही है जो कि हमारे प्रीवियस कन्विक्शन अगर उसी तरह के ऑफेंसेज में हो चुके हैं तो वहां पर भी नहीं हुआ, एक तरह से आप हार्डकोर क्रिमिनल हो गए हैं, आपको नहीं मौका मिलेगा। और 265A जो बताता है, इसमें बताएगा कि इसको जब इजी वे में पढ़ेंगे तो सीधा सीधा कहता है कि डेथ सेंटेंस में प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। जो 7 साल से अधिक के ऑफेंसेज हैं, 7 साल से अधिक मतलब 7 साल तक, एक्यूरेट 7 साल तक का है तो उसमें प्ली बार्गेनिंग अप्लीकेबल होगा। लेकिन 7 साल से अधिक का है, जैसे मान लीजिए 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, उस मामले में अप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पर हम बताएंगे कि आप इसी में सारे डिस्कस करूंगा कि ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन है, अप्लीकेबल नहीं होगा। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज है, सब मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो अब इसके 3 पार्ट हमने देख लिया कि 265A में क्या है, बी में क्या है, एल में क्या है। इन तीनों के हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है। और इसको मैंने बता दिया कि जनरली इसको हम सीरियस कैटेगरी में रखते हैं। ये जो ऑफेंसेज हैं ये हम सीरियस कैटेगरी में ला करके आपको रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम आएंगे यहाँ पे एप्लीकेशन में, जब हम आएंगे कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मेन रीजन ये था कि केस में अगर पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है, तब क्या होगा, अगर कंप्लेंट फाइल है तब क्या होगा, तब कैसे प्ली बार्गेनिंग होगा। अब हम पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट का एक 2 एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। 2 एग्जाम्पल की मदद से तुम लोग आसानी से समझ जाओगे, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। देखो 2 एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 4 बच्चों की जरूरत है हमें। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि अखिलेश है, एक अखिलेश है और दूसरा शहबाज है। तो अखिलेश हिंदू हो गया और शहबाज मुस्लिम हो गया। तो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है यहाँ पर हम लाकर खड़ा करेंगे, पहले पॉइंट में रखेंगे। इन दोनों के बीच में क्या होता है, कब ये प्ली बार्गेनिंग दोनों कर लेंगे, इस पर हम लेकर के यहाँ पे लाएंगे, हिंदू मुस्लिम करके लेकर आएंगे। और दूसरा हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे एक, ब्राह्मण बनाम दलित का एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ब्राह्मण बनाम दलित में तुम लोगों के क्लास के बच्चों का तो मुझे कास्ट नहीं मालूम है, लेकिन एक का मुझे मालूम है, मालूम तो 2-3 का है। एक अखिलेश का भी मालूम था, एक भानु का भी मुझे मालूम है। तो मान लीजिए कि भानु, तो मान के लेना भानु ब्राह्मण है, और बाकी का तो मुझे आइडिया नहीं चल रहा है, लेकिन एक मान लेते हैं कि पार्थ, पार्थ को मान लेते हैं कि दलित है। अब यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल में हम एक ब्राह्मण और दलित का एग्जाम्पल लेंगे, भानु और पार्थ का एग्जाम्पल लेंगे, और यहाँ हिंदू मुस्लिम का एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें कि एक शहबाज हो जाएगा और दूसरा अखिलेश हो जाएगा। देखो तुम लोगों को मैं इसलिए एग्जाम्पल लेता हूँ कि तुम लोग हमारे बहुत ही बेस्ट हो, और मैं जानता हूँ तुम लोगों में रिलेशन भी आपस में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तभी एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हिंदू मुस्लिम का जो मैटर है। अब उसमें एक दिन क्या हुआ था कि मैटर कुछ गरमाया हुआ था दिल्ली में, और बहस चल रही थी, और यहाँ पे अखिलेश और शहबाज दोनों रूममेट हैं। और बातें बात में क्या हुआ कि अखिलेश ने उसको शहबाज को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब जब एक थप्पड़ उसको जड़ दिया तो शहबाज को भाई मार दिया, शहबाज का दांत टूट गया। तो शहबाज का जब दांत टूट गया तो शहबाज ने क्या किया, केस कर दिया। जब केस किया तो किस चीज का केस किया, ग्रीवस हर्ट का केस किया। एलिगेशन था कि अखिलेश ने एक्साइटेड होकर के, मतलब बात में मुझे ऐसे करके मुझे एक थप्पड़ मतलब वो मार दिया इस तरह का। तो वहां पर शहबाज क्या किया, शहबाज हमसे कंसल्ट किया, और जो भी था फिर जाकर के शहबाज ने FIR करा दिया। अब जब FIR करा दिया तो अब अखिलेश का भी फोन आ गया, कहा कि सर कंप्रोमाइज कराइए। अब अखिलेश चाह रहा है कि जो भी हुआ मैटर को कंप्रोमाइज हो जाए, प्ली बार्गेनिंग हो जाए। तो क्या अखिलेश का मैटर कंप्रोमाइज हो सकता है यहाँ पे? तो कब कंप्रोमाइज होगा ये ध्यान में रखने की बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशन कब देंगे प्ली बार्गेनिंग के लिए। प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन आपको पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद दी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि शहबाज जमीन से सीढ़ी से उतर रहा था, फिसल गया, उसका दांत फिसलने की वजह से हो गया,
लेकिन वो समझ रहा था कि हिंदू मुस्लिम का डिबेट बहुत ज्यादा है, चलो अखिलेश ने हमारी गर्लफ्रेंड की तरफ नजर उठा करके देखा था, यही अच्छा मौका है मैं अखिलेश पर केस कर दूं। तो जब पुलिस से एफआईआर तो हो गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत कुछ आ सकता है ना। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट हो सकती है, फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट हो सकती है, और कुछ मैटर में बाय नाम बाय नेम है तो इन्वेस्टिगेशन होगा भी नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर रखती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब तक पुलिस रिपोर्ट सबमिट न हो जाए तब तक प्ली बार्गेनिंग की बात ही नहीं उठेगी, तब तक अखिलेश जो है अपना अप्लीकेशन प्ली बार्गेनिंग के लिए नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट कुछ भी आ सकती है। एक फाइनल रिपोर्ट आता है 169 सीआरपीसी में होता है। फाइनल रिपोर्ट तब सबमिट होती है जब एविडेंस डेफिशिएंट हो। डेफिशिएंट का मतलब ये होता है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। तो वहां पर तो ये हमारे कहने का मतलब है कि एफआईआर होने से पहले या मतलब कुल मिला जुलाकर पुलिस रिपोर्ट जब तक सबमिट ना हो जाए तब तक एप्लीकेशन आप नहीं देंगे प्ली बार्गेनिंग के लिए। दूसरा मैटर में फिर हम लेते हैं कि मान लीजिए कि भानु है और पार्थ है। तो भानु और पार्थ में हम एक कंप्रोमाइज करते हैं। भानु और पार्थ क्या होता है, बहस चल रही थी कुछ अम्बेडकर की बात, अम्बेडकर जी को लेकर के कुछ बहस चल रही थी। बात में भानु एक्साइटेड हो गया और जो भी था या दलित उलित कहकर उसको गाली उली देता है पार्थ को। और बाय चांस, हाँ भाई पार्थ, अगर तुम दलित हो गए तो ये मत सोचना कि सर इंटेंशनली कह रहे हैं, तुम्हारा हमें जाति धर्म कुछ मालूम मालूम है नहीं, जो भी हो तुम हो, लेकिन बाई चांस निकल ही जाओ तुम कुछ दलित उलित, तो जो भी हो, ये सब एग्जाम्पल है, क्लास का एग्जाम्पल है, इसे तुम लोग अच्छी तरह समझ जाते हो। तो भानु क्या किया कि पार्थ को दलित कहते हुए गाली देते हुए पार्थ को मार देता है। जब पार्थ को मार देता है तो पार्थ गया वो कराने के लिए, कंप्लेन कराने गया, अरे एफआईआर कराने गया। लेकिन पार्थ दलित है, अब यूपी में सरकार तो कुछ और है। तो इस तरह से लेकर के पार्थ का एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाती है। पार्थ का एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाती क्योंकि वो दलित है, एफआईआर लॉन्च कराने में उसको दिक्कत आई। तो फाइनली उसने क्या किया कि कंप्लेन कर दिया, मजिस्ट्रेट के पास गया और रीजन दिया कि नहीं हमारा एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, ऐसे वैसे करके पार्थ ने भानु के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन कर दिया। अब भानु फंस गया। अब भानु के दिमाग में आ रहा है कि यार जो भी हो हमारा करियर खत्म हो जाएगा, पढ़ना लिखना है, ये है वो है, मुरारी सर का क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो अब चाह रहा है किसी तरह से प्ली बार्गेनिंग करा लें। तो अब भानु कब एप्लीकेशन देगा? भानु तब तक एप्लीकेशन नहीं देगा, तब तक मैटर इस पर नहीं आएगा जब तक कि 203 तक का, जब तक कि 204 में प्रोसेस इशू ना हो जाए। 203 का मतलब मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ कि प्रोसेस मतलब कि सम्मन या वारंट एज द केस में भी इशू हो जाए। क्योंकि देखो मान लीजिए कि एप्लीकेशन दिया है पार्थ ने, तो मान लीजिए कि पार्थ को भी दिमाग में आया हुआ है कि यार ये तो भानु ब्राह्मण है और उसको भी बदला लेने का कहीं ना कहीं कुछ है इसी तरह का जैसे शहबाज का है कि भी उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ नजर उठाता है। तो भानु भी क्या, पार्थ भी भानु से बदला लेने के लिए भी हो सकता है कि फॉल्स केस कर दे। तो इसीलिए तब तक प्री बार्गेनिंग की बात नहीं आएगी, तब तक कुछ मैटर स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि मजिस्ट्रेट सेक्शन 200 के अंतर्गत बुला करके पार्थ को पूछ न ले, जांच पड़ताल न कर ले, मतलब कि 200, 203 जो भी प्रोसीजर है फुलफिल ना हो जाए। प्रोसीजर फुलफिल होने के बाद ही जब प्रोसेस इशू होगा, प्रोसेस का मतलब सम्मन या इशू 204 में, तो 204 के बाद ही प्री बार्गेनिंग का एप्लीकेशन दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो शहबाज और अखिलेश का था, अखिलेश भी ब्राह्मण है, शहबाज मुस्लिम है, तो यहाँ जो शहबाज और अखिलेश का था, अखिलेश तभी एप्लीकेशन दे पाएगा जब पुलिस रिपोर्ट किस में सबमिट होती है, आर्टिकल 170 सेक्शन 173 में सबमिट होती है। तो 173 के बाद ये आएगा पार्ट, और कंप्लेंट 204 के बाद आएगा। तो अब यहाँ पर हम ये जान लेंगे कि कब एप्लीकेशन दिया जा सकता है। देखो मैं लिखा हूं कि सेक्शन 265 पे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली एप्लीकेशन, ये वाला जो पार्ट है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 21 इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड टू पार्ट्स। कॉग्निजेंस अगर पुलिस रिपोर्ट पर लिया गया है तब क्या होगा, अगर कॉग्निजेंस कंप्लेंट पर लिया गया है तब क्या होगा, अगर कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है या नॉलेज पे लिया है, अपने खुद के नॉलेज पे लिया है, तो वहां प्ली बार्गेनिंग के मामले में लॉ साइलेंट है। अब नॉन एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 21 सेकेंड पार्ट है जिसको मैं डिस्कस करूंगा। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा। अब देखो एप्लीकेशन की जब बात आएगी
तो कह रहा है कि अगर कॉग्निजेंस लिया गया पुलिस रिपोर्ट पे, मतलब पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई है और कॉग्निजेंस लिया गया है, तो जब तक की रिपोर्ट, हमने हेडिंग तो मैं खुद ही बनाया हूं, हेडिंग मैं खुद बनाता हूं, बाकी वेरेक्ट यूज करता हूं। द रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 173 alleging therein that the offense has been committed by him। रिपोर्ट में सीधा सीधा लिख दिया गया है कि उस तरह का ऑफेंस आ रहा है जो कि इसने, अखिलेश ने कर रखा है, लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि किस मामले में अप्लीकेबल नहीं होगा। डेथ सेंटेंस के मामले में अप्लीकेबल नहीं होगा। पनिशमेंट फॉर डेथ सेंटेंस हो गया, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया, या इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, एक्सीडिंग 7 ईयर्स, इन 3 मामले में एप्लीकेबल नहीं होगा। हम पूरा डिस्कस करेंगे, निकालेंगे, मतलब रिपोर्ट में अगर ए निकल करके आ जाए कि अखिलेश ने सिर्फ दांत ही नहीं तोड़ा था, अटेम्प्ट टू मर्डर किया था, तब अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये निकल जाए कि अखिलेश ने सिर्फ उसको ग्रीवस हर्ट किया था, तो वहां पे अप्लीकेबल होगा कि ग्रीवस हर्ट में 1 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे सजा होती है। ये तो तुम्हारा 173 अखिलेश हिंदू मुस्लिम वाला हो गया तुम्हारा। अब दूसरा पार्ट तुम्हारा आ गया दलित और ब्राह्मण वाला आ गया। अब यहाँ पे जो अप्लीकेशन कंप्लेन किया गया था, तो इसमें भी वही तभी इशू होगा जब वहां पे प्रोसेस इशू हो चुका 104 में। लेकिन कब अप्लीकेबल नहीं होगा? अप्लीकेबल सेम है, देखो एक बार बता दूं, रुक जाओ। अब देखो इसका भी एप्लीकेशन वही है। एप्लीकेशन में सीधा सीधा कह रहा है कि भाई ये जो यहाँ पर है सेम बात यहाँ पर भी है। अगर डेथ सेंटेंस का मैटर हो, या इम्प्रिजन लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मैटर हो, या एक्सीडिंग 7 ईयर्स का हो, तब नहीं होगा। इस तरह से निकल करके आ गया तुम लोगों की बात कि अगर पुलिस रिपोर्ट है तो आफ्टर सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट, अगर कंप्लेंट से केस चल रहा है तो आफ्टर इशूइंग ऑफ प्रोसेस अंडर सेक्शन 204। फिर ये देखो 3 यहाँ पे हो गए, तो मैं 3 मैंने बता रहा हूं। एक तो मान लीजिए कि एक हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा हो गया, 3 हो गए। वही मैटर यहाँ पर भी 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, अब हम चौथे जगह जहां अप्लाइड नहीं होता वहां बता रहा हूं। चौथा जगह वो है कि इफ इट अफेक्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। किसको इफेक्ट कर रहा है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। अब कौन से मामले सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री है, एक कोर्ट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करती है कि कौन ऑफेंसेस सोशियो इकोनॉमिक में आएंगे, कौन नहीं आएंगे। ये तुम्हारा हो गया चौथा पॉइंट हो गया। कौन सा हो गया? चौथा। चौथा जगह जहां पर अप्लाई नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है कि अगेंस्ट वुमेन, अगर वुमेन के खिलाफ है तो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा। अगर चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स है तो यहाँ पर भी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो 6 हो गए, तो 6 जगह अप्लाई नहीं होते हैं। 2 मैं और निकालूंगा, 8, क्योंकि बी कहता है कि जहाँ प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है वहां पर अप्लाई नहीं होगा, 7वां हो जाएगा। और 8वां यल में होगा कि जहाँ की जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन हो वहां पे नहीं होगा। तो 7, टोटल 8 जगह अप्लाई नहीं होते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होते हैं। तो कहाँ कहाँ, अभी मैं बताया कि जहाँ डेथ सेंटेंस है वहां अप्लाई नहीं होंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वहां नहीं होंगे, एक्सीडिंग 7 ईयर है वहां नहीं होंगे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, ऑफेंसेस अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, वुमेन के खिलाफ है वहां नहीं होंगे, चाइल्ड के खिलाफ है वहां नहीं होंगे। ये तो तुम्हारे ए से निकल कर क्या है, बी से क्या निकल कर क्या है, बी से निकल कर क्या है तुम्हारा कि हाँ प्रीवियस कन्विक्शन है बी का है, प्रीवियस कन्विक्शन क्या है, किसका है, बी का है। और एल से निकल कर के आया तुम्हारा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। अब एक फुटनोट तुम्हें बताएगा कि यहाँ पे ये एक्ट को रिपील कर दिया गया है। 165-66 का फुटनोट देखो, 165-66 का फुटनोट में सीधा सीधा मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो है एक्ट है जो 2000 का है, अब क्या हुआ है, रिपील हो गया है। किससे रिपील हुआ है? सेक्शन 111 क्लास 1 किसका था, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन 2015 के अंतर्गत रिपील हो गया है। तो इस तरह से क्लियर हो गया पॉइंट कि कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आएंगे एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। अब इधर से हम तेजी से खींच ले जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन कौन देगा? तो पहला बात है कि एक्यूड एप्लीकेशन देगा। कैसे देगा, एप्लीकेशन में क्या क्या बातें कंटेंट होनी चाहिए?
तो उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस लिखेगा कि हमारे खिलाफ क्या केस है, कैसे मैंने थेफ्ट किया, चोरी किया, जो भी था वो लिखकर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ केस लिखेगा। फिर एफिडेविट देगा और एफिडेविट में लिखेगा कि जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वॉलंटरली दे रहा हूँ और मैं सब कुछ नेचर ऑफेंस सब कुछ समझ करके दे रहा हूँ। और अगला बात ये लिखेगा कि मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं हूँ। यही मैं पॉइंट 8वां पॉइंट बता रहा था कि यहाँ पर जहाँ प्रीवियसली कन्विक्टेड है वहां पर अप्लीकेबल है नहीं होंगे। अब मान लीजिए कि कोर्ट को आपने एप्लीकेशन दिया, बाय चांस मान लीजिए कि नमो नहीं याद है, मान लीजिए कि नेहा, मान लीजिए नेहा जज है, तो नेहा जज है तो आपने उसको एप्लीकेशन दिया कि मैं प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूं। तो नेहा क्या करेगी, नेहा आपको बुलाएगी, आपसे पूछताछ करेगी और जब आपसे पूछताछ करेगी तो अपोजिट पार्टी वहां प्रेजेंट नहीं रहेगा। इन एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी, अपोजिट पार्टी वहां पे एब्सेंस नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अखिलेश ने अगर अपना एप्लीकेशन दिया है तो शाहरुख शहबाज नहीं रहेगा और पार्थ ने दिया है तो वहां पे भानु वहां पे नहीं रहेगा। तो इन दोनों से एक्यूज से पूछेगी पर्सनली, अखिलेश से पूछेगी और भानु से पूछेगी, कहेगी ये बात बताओ कि तुम लोग प्ली बार्गेनिंग कर रहे हो मतलब वॉलंटरली कर रहे हो कि प्रेशर में आकर कर रहे हो। तो प्रेशर किसी भी तरह का हो सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, कोerसन भी हो सकता है, तुम्हारा गुरु जी भी तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो सब कुछ पूछेगा कि तो पूछ उछ लेगा जो भी था। अगर वॉलंटरली है तब तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, अगर वॉलंटरली नहीं है तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और फिर से केस जहां से स्टार्ट था वहां से चलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये वॉलंटरली है तब क्या होगा, अगर वॉलंटरली है तब यहां पर आएगा, ठीक ना। अगर इनवॉलंटरली है तो ये बैक चला जाएगा, अगर इनवॉलंटरली है तो सीधा एकदम बैक जाएगा, एकदम सीधा, मतलब जहां भी जा सकते हो जितना भी जा सकते हो एकदम पीछे से केस स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम देखेंगे अगर वॉलंटरली है तो आगे बढ़ेगा, इनवॉलंटरली है तो फिर केस जहां से था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर वॉलंटरली है तो नोटिस किसको देंगे आप, नोटिस ऑफ कोर्स अगर पुलिस रिपोर्ट पर सबमिट होती है तो उसमें पीपी इंटरेस्टेड होता है तो वहां पीपी को नोटिस देंगे। अगर कंप्लेंट पर जो केस स्टार्ट हुआ है तो वहां पे कंप्लेनेंट को देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे बेसिस लिख दिया है, यहाँ पे मैंने तुम्हारे समझने के लिए लिखा हूं कि अगर भानु अरे अखिलेश के केस में अखिलेश ने एप्लीकेशन दिया तो नोटिस किसको जाएगी, नोटिस साथ साथ में पीपी को जाएगी, क्योंकि शहबाज तो अपना केस डिस्कस कर नहीं रहा, पीपी डिस्कस कर रहा है तो वहां पीपी को जाएगी। अगर पार्थ और भानु के केस में किसको जाएगी, तो पार्थ जब भानु जब एप्लीकेशन देगा तो पार्थ को जाएगी, क्यों, क्योंकि वहां पे कंप्लेनेंट खुद ही अपना इंटरेस्टेड पार्टी है। इस बात को ध्यान में अगर देखो एक बार बता दूं, अगर तुम्हारे बात में एक बार दिमाग में चल गया कि हम पुलिस रिपोर्ट के मैटर में कैसे चलेगा और कंप्लेनेंट के मैटर में कैसे चलेगा, तब तुम समझ जाओगे। अगर पहला पार्ट ही नहीं समझ पाए, जो बता रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है अभी जो बता रहा था, हाँ अगर ये जो हिंदू मुस्लिम, ओ खत्म हो गया, कहाँ गया, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरा 356 पेज आ गया यार, कितना पेज था, सही है, एक मिनट 87, खत्म हो गया, कंट्रोल फाइंड हो सकता है क्या, हो गया आ गया। तो यही पहला पार्ट तुम लोगों को समझना होगा कि कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट वाला। तो अब यहाँ पे अगर पुलिस रिपोर्ट पर अगर हुआ है तो पीपी को नोटिस जाएगा, अगर भानु और अखिलेश और शहबाज का कंप्रोमाइज चल रहा है तो पीपी को जाएगा, और पार्थ और भानु का अगर कंप्रोमाइज चल रहा है तो पार्थ को जाएगा। अब यहाँ पर पार्ट जो भी जाएगा, टाइम कोर्ट क्या करेगा, फिक्स कर देगा कि इस पार्टिकुलर डेट को आकर के तुम लोग अपना कंप्रोमाइज कर लेना, मतलब बातचीत कर लेना। तो जब कंप्रोमाइज करने के लिए पार्टिकुलर डेट आएगा तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है, उसमें कंपनसेशन फिक्स किया जा सकता है, अदर एक्सपेंसेस भी फिक्स किए जा सकते हैं। आज दोबारा तुम्हें डेट की जरूरत पड़ रही है कि आगे फिर से हियरिंग किया जाए, एक दो और डेट लिया जाए, आज कंक्लूड नहीं किया गया, संभावना तो बन रही है लेकिन कंक्लूड नहीं हुआ, तो आगे भी वहां बढ़ा सकते हो। अगला पॉइंट सी है कि अगर गाइडलाइंस म्यूचुअली सेटिस्फेक्शन कैसे होगा,
तो म्यूचुअली सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पर किसको किसको अलाउ किया जाएगा, ये सबसे देखो इम्पोर्टेंट बात है कि वहां पे तो हियरिंग की जब बात थी वो उसका था। यहाँ पे अगर गाइडलाइन क्या है कि आप 4 को नोटिस देंगे, अगर पुलिस रिपोर्ट पर रहता पीपी को देंगे, पुलिस ऑफिसर को देंगे, जो केस को इन्वेस्ट किया है उसको देंगे, एक कॉपी एक्यूज को जाएगी और एक कॉपी विक्टिम को जाएगी, और चारों मिलकर के अपना कंप्रोमाइज करेंगे। तो पुलिस रिपोर्ट में कितने लोग हैं, पुलिस रिपोर्ट में 4 लोग हैं। कैसे 4 हो गए भाई, पीपी हो गया और पुलिस ऑफिसर हो गया, 2 एक्स्ट्रा हो गए। ये दोनों कंप्लेंट में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं सबमिट होती है और पीपी के केस को डिस्कस करता नहीं, वो कंप्लेनेंट खुद अपना डिस्कस कर लेगा। तो यहाँ पर 4 हो गए, पीपी हुए, पुलिस हुई और एक्यूज हुआ, विक्टिम हुआ। लेकिन ये कोर्ट की हमेशा ड्यूटी रहेगी, कोर्ट हमेशा देखता रहेगा कि भाई बीच में किसी को धमकी उमकी तो नहीं मिल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। ये कोर्ट हमेशा देखेगा कि प्रोसीडिंग वॉलंटरली चल रही है। वही बात कंप्लेंट पर अगर आएगी तो कंप्लेंट में 2 को नोटिस जाएगा, तो वहां पे 4 को नोटिस जा रहा था पुलिस रिपोर्ट में, कंप्लेंट को 2 को जाएगा। एक एक्यूज है और दूसरा विक्टिम है। इन दोनों के मामले में भी कोर्ट हमेशा देखता रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि एक्यूज उसको धमकी दे रहा है, तो वहां ये देखेगा। इसका रिजल्ट देखो क्या आता है। अगर मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तब, मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो वाह भाई वाह, तब तो कोई बात ही नहीं, कहानी खत्म। अगर सक्सेसफुल हो गई तब क्या होगा, अगर अनसक्सेसफुल हुई तब क्या होगा। अगर अनसक्सेसफुल हो गई तो उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी कि प्रोसीडिंग अनसक्सेसफुल हो गई है और उसको फिर से केस जहां से स्टार्ट हुआ था उसको वहीं से शुरू कर दिया जाए, एज इट इज की अप्लीकेशन कभी दिया ही नहीं गया था, और हियरिंग दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अगर मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो डी में लिखा जाएगा कि मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, ई में लिखा जाएगा, ई के हिसाब से मैनर होगा, अभी प्रोबेशन कंपनसेशन प्रोबेशन 1/2 1/4 का पनिशमेंट होगा। एफ में उसका जजमेंट लिख दिया जाएगा और जजमेंट यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। जब फाइनल हो जाएगा तो रूल क्या है कि ये फाइनल है। 3 एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को मैंने अभी डिस्कस कर दिया। ये तीनों तुम्हारे 136 226 227 है, 3 एक्सेप्शन हो गए। अब मान लीजिए सक्सेसफुल मीटिंग हुई तब क्या होगा और अनसक्सेसफुल मीटिंग हुई तब क्या होगा, अभी बता दिया। हाँ, डी हो गया, सक्सेसफुल मीटिंग पर क्या होगा और अनसक्सेसफुल क्या होगा। अनसक्सेस होगा तो केस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, केस दोबारा से स्टार्ट होगा। अगर सक्सेसफुल हो गई तो रिपोर्ट तैयार करके जजमेंट लिखा जाएगा, जो भी हो सब कुछ तैयार किया जाएगा। डी, डी के बाद ई आ जाओ। डिस्पोजल ऑफ केस कैसे होगा, जब वहां सक्सेसफुल हुआ तब, सक्सेसफुल हुआ तो आप देखेंगे कि कंपनसेशन मिला कि नहीं मिला, प्रोबेशन के लिए इंटाइटल है कि नहीं है। जहां मिनिमम पनिशमेंट है वहां पे आप 1/2 दे सकते हैं, जहां मिनिमम पनिशमेंट की बात नहीं है वहां पे 1/4 दे सकते हैं। तो तुम्हें क्या ध्यान में रखना होगा कि जहां मिनिमम है वहां कितना दोगे, हाफ दे सकते हो। आज जहां मिनिमम नहीं लिखा गया है 1/4 दे सकते हो। अब हाफ का क्या हुआ, जैसे 12 महीना हुआ तो 12 महीने का हाफ कितना हो गया, 6 महीना दे सकते हो। अब 12 महीने का 1/4 कितना हो गया, तो 3 महीना हो गया, 1/4 हो गया। जहां मिनिमम पनिशमेंट हो गया, जैसे मान लीजिए कि 1 साल का मिनिमम पनिशमेंट है तो वहां 6 महीना का दे सकते हो। आज जहां मिनिमम पनिशमेंट नहीं है वहां कितना का दे सकते हो, 3 महीने का दे सकते हो। अब आप क्या करेंगे, जजमेंट लिखेंगे। जजमेंट लिखने के बाद आपका क्या होगा, सेम शैल बी साइंड, साइंड एंड साइंड होगा। देखो ये कह रहा है कि जजमेंट आप कैसे लिखेंगे, जजमेंट आप जो सेटिस्फेक्शन हुआ है, जो पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से होगा, और उस जजमेंट में ई की सारी बातें होनी चाहिए कि कंपनसेशन का क्या था, प्रोबेशन क्या था, आप हाफ दिए हैं 1/4 दिए हैं, सब सारी चीजें लिख करके आप साइन कर देंगे, यहाँ पे साइन करके जजमेंट फाइनल हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि एक बार अगर जजमेंट लिख दिया गया, अगर जजमेंट लिख दिया गया and the judgment delivered by court under section 265G shall be final, ये जजमेंट जी होना चाहिए कि जे होना चाहिए, 1 मिनट भाई अभी देख लें इसको। तो एक्ट में 265 का जी ही लिखा हुआ है। फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, कहा कि यहाँ पे जो भी जजमेंट है वो जजमेंट क्या होगा, फाइनल होगा और इससे कोई भी अपील नहीं होगी। क्या होगा, अपील नहीं होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, 3 एक्सेप्शन है।
पहला एक्सेप्शन स्पेशल लीव अंडर आर्टिकल 136 है, दूसरा है कि आर्टिकल 226 है और तीसरा 227 है। ये उत्तराखंड और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका देता है और ये हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट, इसके माध्यम से आप जा सकते हो और ये दोनों के माध्यम से आप हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हो। पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग का है। पावर क्या है कि आपको जो अदर पावर जो है, जो भी आपको जरूरत हो उसको इम्प्लीमेंट कराने का, जैसे मान लीजिए बेल के रिगार्डिंग पावर कुछ हो, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस का पावर कुछ हो, अदर मैटर हो, सम्मन उमन केस करने का, सब पावर आपको दिया गया है। स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड, मैं हमेशा कहता हूं कि जो डिस्पोजल प्ली बार्गेनिंग होगा तो प्ली बार्गेनिंग में कंप्रोमाइज होता है, दोनों पार्टी अपने तरफ से कुछ गलती एक्सेप्ट करके आगे बढ़ती हैं। तो कह रहा है कि जो भी आप स्टेटमेंट दिया जाएगा वह स्टेटमेंट सिर्फ प्ली बार्गेनिंग के पर्पज से ही यूज होगा। अगर प्ली बार्गेनिंग नहीं हो पाया तो उसका स्टेटमेंट कहीं और यूज नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज, वो किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं होगा सिवाय एक्सेप्ट द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। तो क्लियर हो गया। अब नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर में हमने बोल दिया है कि जो जुवेनाइल जस्टिस का जो था कि नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू जुवेनाइल और चाइल्ड अंडर सेक्शन के ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट। और फुटनोट में आपको बता दिया हूं कि यह जो है 2015 के कानून से रिपील हो चुका है और ये अपनी रिलेवेंसी खत्म हो गया। अब इस तरह से प्ली बार्गेनिंग का हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो थैंक्स फॉर एवरीवन। इट वाज वेरी बोरिंग बट एनीवे थैंक्स।